न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. The supreme abode of mind is not illuminated by sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. So the discussion of yesterday we discussed. First thing in this chapter, there is the description of the ऊर्ध्वम मूल आधा शाखा. क्या डिस्क्रिप्शन है? पहले एक उल्टे पेड़ का. उल्टा पेड़ कहाँ दिखता है? देखा कभी? पानी में दिखता है. तो उसको पानी क्या है? पानी में ये आपका जो असली पेड़ है उसका छाया है. तो असली पेड़ हो गया वैकुंठ धाम. और इस दुनिया में दिस वर्ड इज अ इमिटेशन. इट लुक्स रियल but it's not real. So that was the first part that is described, and it was explained, this tree was explained in detail as different enjoyments in this tree, different our pleasures of the tree were described. The next thing was that after understanding this tree of material existence, basically कैसे इस दुनिया में हम फंसे हुए हैं, once you understand that, it says cut this tree. Very interestingly, it says cut. Basically, cut this illusion. You cannot cut the real tree. What you can cut is this illusion. Means we are looking at the shadow now and we are thinking this is reality. Therefore, Prabhupada says, what is illusion is not this world. The way you are looking at this world is illusion. This word is not illusion, this word is existing. The way you are looking, and what are the things we are looking wrong in this world? What is there in the spiritual world which we are looking for variety in this world to be permanent. इस दुनिया में जितनी भी variety है उसको हम permanent सोचते हैं. Permanent नहीं है, temporary है. Again, it's temporary. Every variety in the world is temporary, including your own body, which we are so attached. It is temporary, and we are seeing it. It is going towards this destruction. We see the relationships in this world, and then see other forms in this world. We took to be permanent, they are not permanent. वो भी temporary है. जितना relationship है वो भी temporary है. ये पूरा आपका प्रकृति वो भी temporary है. और इस दुनिया में किसी को हम hero बनाते हैं वो भी temporary है. It's an imitation of the spiritual world. So therefore, first thing that explains इस chapter में क्या समझाया पहले, ये जो दुनिया है पूरा उल्टा पेड़ है. मतलब ये एक वैकुंठ धाम का शैडो है. और क्यों शैडो से आप अटैच्ड हो, इस शैडो से मोहित होना बंद करो. वो पेड़ काटने के बराबर हो गया. ठीक है. यू कैन नॉट कट द रियल ट्री. रियल ट्री इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. यू आर कटिंग दिस इन्वर्टेड ट्री. इन्वर्टेड ट्री मीन्स इल्यूजन. इल्यूजन को काटो. एंड देन कैसे इल्यूजन को काटो? नेक्स्ट ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा आपको. प्रभुपाद बोलते हैं सारी गलती क्यों होती है? बिकॉज हम अज्ञानी हैं. कह रहे अज्ञान के कारण ही सारी गलतियां होती हैं. तो अज्ञान को निकालने का वो 13 चैप्टर में 20 पॉइंट्स है, वही अभी रिपीट हो गए करीब करीब. निर्माण मोहा कल डिस्कस किया था हमने. कह रहे पहले हम्बल हो जाओ, क्योंकि आपकी इंद्रियां सीमित हैं, तो आपको कुछ ज्ञान अपने आप प्राप्त नहीं होगा. हम्बल होके जो वेद का ज्ञान है उसको सुनो. ये अभी आजकल मिस्टेक है. लोग वेद से ज्ञान नहीं ले रहे. पहले इंडिया में पूरे भारतवर्ष में सब लोग वेद का ही ज्ञान सुनते थे. अभी लेना बंद कर दिया. ठीक है. तो इसलिए अज्ञानी हो गए. तो पहले चीज़ ये समझ लिया कि ये जो हमारा शैडो ट्री है, इससे आकर्षित नहीं होना. इससे आकर्षित नहीं होना तो आपको ज्ञान चाहिए. ज्ञान चाहने के लिए आपके कुछ स्टेप्स बताए गए थे कल श्लोक में, आप सबने सुना. निर्माण मोहा क्या था? या निर्माण मोह जितसंग दोष अध्यात्म नित्या निवृत्त कामः द्वंद्व मुमुक्ता सुख दुख समय गच्छन्ति अमूढ़ा पदमावयम तत्. क्या चीज़ है?
false prestige, illusion, false association, who understand the eternal, who are done with the material lust, who are freed from the duality of the happiness, distress, who are unbewildered, know how to surrender to Supreme Person, attain to the internal kingdom. सबसे important चीज how to surrender to the Supreme Person. So ये list दिया था, ये सब चीज आपके पास होना चाहिए. Next it says जो असली ट्री है वो कैसा है? That is आज शुरू हो गया. What is it starting? न तद्भाष्यते सूर्य, वहां सूरज की जरूरत नहीं है. ये जो मेटल वर्ड है इट इज डार्क. जैसे अभी रात हो गया है, जहाँ पे लाइट है आप देख सकते हो, जहाँ लाइट नहीं आप नहीं देख सकते. वैकुंठ धाम इज सेल्फ एफल्जन. वहाँ सब लोग एवरीथिंग इज हैप्पी. क्या है उधर? एवरीबडी इज वेरी वेरी हैप्पी. मेटल वर्ड एवरीबडी इज वेरी वेरी सैड. सब तरह से अंधकार है इधर. आत्मा में अंधकार है, आत्मा भी पड़ा है. आकाश में भी लाइट नहीं है. कह रहे एक सन से लाइट करना पड़ता है, किसी चीज से लाइट करना पड़ता है. वैसे नेचर है डार्क. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एफुल्जन. ना शशांक ना पावक. उधर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं चाहिए. रात को आपको मून से थोड़ा लाइट मिलता है, पर्टिकुलरली जब पूर्णिमा होती है. ठीक है, बहुत लोग तो मून को देखे बहुत दिन हो जाते हैं कभी, बिकॉज आजकल का समाज अलग तरह का है ना. मेनी टाइम वी आर नॉट सीन मून फॉर डेज. नो हैबिट, बिकॉज वी डोंट गो आउट इन द प्रीवियसली पीपल लिव विद नेचर, तो दे यूज्ड टू से मून को देखते थे. कभी कभी बहुत दिन हो जाते हैं मून को देखे हुए. देखा क्या? बहुत दिन हो जाते, देखने का कोई हैबिट ही नहीं रहा. बट पहले देखते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे मून का भी जरूरत नहीं है, सूर्य का भी जरूरत नहीं है. न तो भाष्यते सूर्यो न शशंक न पावकः. ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यद्गत्वा न निवर्तन्ते. कृष्णा इज सेइंग गारंटी, इफ यू गो देयर यू विल नॉट कम बैक. सो प्रॉपर्थ एक्सप्लेन्स ये वेरी नाइस, बिकॉज द प्लेस इज सो नाइस, यू विल नेवर कम बैक. इतना अच्छा है वैकुंठ धाम, इतना खुशी जगह है. वहाँ आपका कोई भी खोट नहीं है. वहाँ जो आपका असली आनंद मिलता है. क्यों? शरीर असली है, आध्यात्मिक शरीर है. देन वहाँ पे रिश्ते सत्य हैं, क्योंकि हमेशा रहते हैं. आपका भगवान से रिश्ता हमेशा के लिए रहता है. तो आपका शरीर सत्य हमेशा रहता है, रिश्ते हमेशा रहते हैं, धाम हमेशा रहता है. तो उधर आनंद ही आनंद है, केवल आनंद कांड. और हम कितने इंटेलिजेंट लोग हैं कि वी आर नॉट कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन. अगर आपको ये पता चल जाए, एक शहर है इंडिया में जहाँ लोग मरते ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं पड़ता, और क्या कोई बुढ़ा नहीं होता, पूर्ण जन्म तो कोई सोचो ही नहीं, तो आप उस समय भगो ही नहीं भगे उधर. कह रहे सपोज सब जगह बीमारी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारी आ रही है. अभी नहीं होता क्या, जब ये युद्ध होता है, ये होता है, कोई प्लेग होता है, लोग भगते ही नहीं भगते, सेफ एरिया में जाते नहीं जाते. अभी सीरिया में युद्ध हो रहा है, लोग सब बिस्तर बच्चे पकड़ के भाग रहे हैं, जो जो पकड़ सकते हैं सामान लेके जा रहे हैं ना, जहाँ पे थोड़ा सेफ है. तो ये दुनिया में तो सेफ है नहीं. आप बीमार पड़ोगे, बुढ़े होगे, मर जाओगे. कह रहे अगर आपको ऐसी जगह कोई पता चल जाए तो आप जा क्यों नहीं रहे? आप मूर्ख हो. तो इसलिए प्रभुपाद जी से क्या बोल रहे हैं? वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन. सपोज लोग मर रहे हैं, हर जगह जगह बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अब पता चला एक जगह बहुत सेफ है, तो आज आदमी जाएगा नहीं जाएगा? ही शुड बी, क्या लिखा है? कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कुछ अच्छा शब्द? अब तो कोई दूसरा शब्द आ ही नहीं रहा. तो इस चीज से आदमी को क्या बोलेंगे, इस इंफॉर्मेशन को? जानकारी. तो ये जानकारी अगर आपको सूचना मिली, रेडियो से कहीं टीवी में खबर मिला कि सब जगह बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन एक जगह सेफ है, आप क्यों नहीं जा रहे? तो एक्चुअली हम लोगों को प्रभुपाद जी यही बोल रहे थे, वैकुंठ धाम जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सरेंडर करना पड़ता है. वो नहीं कर पा रहे. सरेंडर करने का मतलब हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट कर. प्रॉपर से वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इन्फॉर्मेशन. क्या होना चाहिए? कैप्टिवेटेड.
क्या मतलब? वेरी वेरी नाइस प्रॉपर्स सेज बिफोर द नेक्स्ट डेथ कम्स. ये बहुत अच्छा लाइन कल का आया था, बिफोर द नेक्स्ट डेथ. कभी कभी सब तो सोच रहे पहली बार ही मरेंगे. पहली बार ही नहीं, करोड़ों बार ही मर चुके हो, और जो नेक्स्ट मृत्यु आने वाली है उसके पहले कुछ करो तुम. क्योंकि फिर करोड़ों वर्ष शायद मनुष्य जन्म ना मिले, मनुष्य मिले भी, आप आध्यात्मिक वातावरण तो मिलेगा, लेकिन उसका फायदा उठाओगे नहीं उठाओगे क्या मालूम. भगवत गीता में लिखा है ना, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग, बड़ा तो श्लोक है, योग भ्रष्ट संजायते. जो आदमी भक्ति योग या किसी भी योग के मार्ग में चलता है लेकिन भ्रष्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता, तो क्या होता है उसको? एक शुचि नाम, मतलब एक ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं, जहाँ कुछ आध्यात्मिक क्रिया होती हैं, और श्रीमताम जो धनी लोग हैं उधर उसको जन्म दिया जाता है. कितने लोग आप जानते हो मैंगलोर में शुचि नाम श्रीमताम के घर में हैं? घर में के लोग थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, करेक्ट, और कुछ धन है घर में, उनके बच्चे कितने लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? 90% लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, करेक्ट. तो क्या गारंटी है आप उसका फ़ायदा उठाओगे और अपने को जानते हो? अगर बाकी आदमी आपको ना जाने, आप तो अपने को जानते हो कि कैसे हम आध्यात्मिक चीज़ों में सीरियस नहीं, तो कितना डेंजर है, नहीं है. तो देयरफॉर प्रॉपर से बिफोर द नेक्स्ट डेथ कम्स, बिफोर, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, बिफोर नेक्स्ट डेथ कम्स. फर्स्ट थिंग इज सेइंग वन शुड बी, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन. व्हाट वन शुड बी? कैप्टिवेटेड. Immediately become very serious, and then before the next death comes, person should become serious. तो क्या करना चाहिए? लिखा है भक्तों के संग में रहना है, वो लिखा नहीं लिखा? And he should go to this place. क्यों यहाँ क्यों जाने का है? न तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, क्या है उधर चीज बहुत इंपॉर्टेंट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि उधर एग्जिस्ट नहीं करते. एक्चुअली हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमयी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे कि एक्चुअली इस जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है. जैसे हम इस लोक को सोचते हैं वैकुंठ धाम है, क्या सोच रहे हैं हम? वैकुंठ धाम है. सो कृष्णा ने रचना करी है, तो कृष्णा जानते हैं उसमें क्या खोट है, इसलिए बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि. तो देखो, हाँ, ये तो वैकुंठ धाम नहीं है. जैसे आपको सपोज एक मैनिक्विन दिखता है ना शॉप में, आजकल इतना सुंदर बनाते हैं कि आपको पता नहीं चल सकता है रियल है नहीं रियल है. कभी कभी डाउट आ जाता है, ऐसा बनाते हैं लोग प्लास्टिक का, ठीक है. लेकिन किसी आदमी को पता है कुछ, बोलेगा जरा पीछे की शर्ट तो निकालो, शर्ट निकाले खाली है, स्प्रिंग रखा है, अरे उसको मालूम है ना जिसने रचना किया है. तो सिमिलरली कृष्णा ने इस दुनिया का रचना किया है, ये वैकुंठ धाम जैसा ही लगता है, उसका छाया है. लेकिन क्या गड़बड़ है इधर? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम. जिसको दर्शन हो गया है, क्या दर्शन हो गया है? यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वही बुद्धिमान आदमी है. लेकिन आदमी सोचता है नहीं, सब कुछ चलता रहेगा इधर, ठीक है. तो बिफोर द नेक्स्ट डेथ कम्स, क्या करो आप? थोड़ा तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषम परम. Prabhupada said acceleration of devotional service. There is one very nice shloka in Bhagavatam. लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते. ये तो बहुत दुर्लभ था, कभी कभी अपने को रिमाइंड करना चाहिए. और पर्टिकुलरली मनुष्य जीवन नहीं दुर्लभ था, भारत भूमि में और भी दुर्लभ है. बहुत ही लब्धवा सुदुर्लभम, बहुत मुश्किल से शरीर मिला है. बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद ये शरीर मिला है, करेक्ट. सुदुर्लभम तूर्णम, क्विकली, फटाफट 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 खत्म करो. तूर्ण मतलब क्या होता है? क्विकली. तूर्णम तीव्रेण मतलब एक ही है, जल्दी जल्दी फटाफट. अच्छे से जप करो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ध्यान से जप करो, भक्तों के संग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि कृष्ण जी एक गारंटी दे रहे हैं. क्योंकि क्या है कि एक्चुअली फ्रीडम है.
तो ये कैसे कि वैकुंठ धाम जाके हम दोबारा नहीं आएंगे वापस, ऐसा क्यों? यद गत्वा ना निवर्तन्ते, क्यों कृष्णा गारंटी दे रहे हैं? बिकॉज एक बारी आदमी गलती करे दोबारा गलती नहीं करेगा। आप करोड़ों वर्ष जो मृत्युलोक में बिताए हो और बिता रहे हो, दर्द तो असली है, सह रहे हो ना, ये नहीं बोल सकते कि ये सब मिथ्या है। दर्दनाक स्थिति में जा रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की स्थिति, एक के बाद एक, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तरह तरह के दर्द होते हैं, डॉक्टर लोग जानते हैं। आजकल क्या सोसाइटी में दिखता नहीं है, इंजीनियर लोगों को मालूम नहीं है, वो तो मॉल में घूमते हैं। डॉक्टर को रियलिटी डेली दिखती है, वो छुपा दी जाती है सोसाइटी से। आपकी मूवी में कहीं पे भी ऐसी चीज़ बताई नहीं जाती, वो खाली यंग लोग भगते दिखाते हैं, बिकॉज वो मूर्खता दिखा रहे हैं, असली चीज़ छुपा रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को छुपा दिया जाता है। ये 4 मेन प्रॉब्लम है लाइफ की। सो एक्चुअली इफ वी कैन अंडरस्टैंड न गत्वा न निवर्तन्ते, तो वैकुंठ धाम में एक बारी आपने करोड़ों वर्ष के यहाँ पे तड़पे, लेकिन वो वैकुंठ धाम में तो एक आधा सेकंड भी नहीं हुआ। जैसे कुछ गला एक थॉट आया था, कृष्ण की सेवा क्या करनी है, थॉट। और कितना टाइम, आपके कितने जन्म लग गए? कि बोलते हैं महाविष्णु की एक ब्रीदिंग इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा, 1 लाइफ ऑफ ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की लाइफ कितनी होती है? करोड़ों साल, करें? तो एक थॉट के, गलत थॉट, फिर आप दोबारा सोचोगे क्या? क्योंकि कितना भयानक थॉट था, कितने तरह के, जैसे होता है ना कभी कभी भयानक सपना आता है, लोग आ रहे हैं आपको मार रहे हैं, भयभीत हो गए, है ना। एक्सपीरियंस तो है, ये नहीं बोल सकते एक्सपीरियंस रियल नहीं है, ये तो भयभीत एक्सपीरियंस हुआ हमको, करेक्ट। हम सोचा कृष्ण की सेवा छोड़ देंगे, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगावांच करे, कृष्ण के सेवा छोड़ के भोग की आंचा करी हमने। भयम द्वितीय अनुवेद साक्षात ईशत अपत्यस्य विपर्य स्मृति ही। जैसे ही हम ईशा अपने मन को भगवान से निकालते हैं, भयभीत स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस भयभीत स्थिति में हम फंसे हुए हैं अभी, करेक्ट है? नहीं है कोई, है भाई, डॉक्टर भी बचेगा नहीं उससे, सब भयभीत स्थिति में फंसे हुए हैं। लोग सोचते हैं डॉक्टर बचाएगा, वो खुद अपने को नहीं बचा सकता। बोलते हैं कि समुद्र में क्रॉस करना है और कुत्ते की पूंछ पकड़ ली तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, दोनों डूबोगे, ठीक है। तो कोई नहीं बचा सकता आपको इसमें, इस दुनिया में, ठीक है। सो ये समझ आना चाहिए कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन एक बारी वैकुंठ धाम देख लेंगे ना, दोबारा ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई बोल रहा है ये आग जली है, मैं हाथ डालूं, डालो, एक बारी हाथ जलाएगा ना, दोबारा नहीं डालेगा। पोटेंशियली उसका फ्रीडम नहीं जाएगा, पोटेंशियली वो दोबारा भगवान की सेवा छोड़ सकता है, लेकिन गलती दोबारा नहीं करेगा। क्यों? समझ गए ना। एक बारी भगवान की सेवा छोड़ के यहाँ पे करोड़ों वर्ष तड़प के दोबारा आदमी नहीं करेगा वो गलती, उसको मालूम है क्या प्राइस है। पॉइंट समझ आ रहा है? यद गत्वा ना निवर्तन्ते, एक बारी गलती हो गई दोबारा आदमी नहीं करेगा। तो इसलिए क्या चीज़ प्रभुपाद जी ने बोली है कि वैकुंठ धाम जाने के लिए खाली एक चीज़ चाहिए, क्या? सरेंडर। बस वो सरेंडर को समझ लीजिए। सरेंडर मतलब होता है टोटल शरणागति, और शरणागति का पहला प्रिंसिपल होता है कि वी ट्राई टू प्लीज कृष्णा एंड वी डोंट डू एनी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करता जिससे कृष्णा उनको बुरा लगे। अपना दिमाग का स्टैंडर्ड नहीं लगाइए, ये चीज़ मेरे को आनंद देती है, ये चीज़ मेरे को आनंद नहीं देती है, इसको सरेंडर नहीं बोलते। सरेंडर मतलब ये चीज़ भगवान को अच्छी लगती है, हमेशा भगवान पर निर्भर, ठीक है, उसको बोलते हैं सरेंडर। मतलब डिवोटी भगवान के बारे में सोचता रहता है, कैसे भगवान को खुश करना है, उनको दुखी नहीं करना है। पहले 2 सरेंडर हो गया, भगवान को अपना गाइड मानना है, अपना प्रोटेक्टर मांगना है, कोई और इच्छा नहीं भगवान की सेवा के अलावा, और भगवान के आगे हमेशा एक छोटा सा व्यक्ति रहना है। ये 6 प्रिंसिपल है सरेंडर के, तो ये कल्टिवेट करने चाहिए हार्ट में, तब हम एक्चुअली भगवान के भक्त बन जाते हैं, और फिर वैकुंठ धाम में जाने का हमको अवसर मिलता है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।